चलिए चलो, once again welcome all. So in this very first session, I will start with what do we mean by data science. Okay, how it evolved over time, what will be what we will be covering throughout this 9 months journey, right? I will cover all these topics, and in the last we will discuss about your questions if you have any, right? So let's get started with DS. आदर्श जी, can you switch to headphones again, please? आपकी आवाज फिर echo हो रही है. Okay. Yeah. Is it better now? Yes, that's better. So let's start with this. We know that nowadays organizations are using data science tools, right, to solve the business problems, and this field started generating the value for the businesses nowadays. That's why हम सुनते आ रहे हैं कि अरे data science everywhere. So before moving to data science part, we will be understanding what is meant by business problems first. So can you guys tell me, what do you think? What do you understand by business problems? Can you list down some of the problems? Yes, I can give you an example of business problem. Suppose we are into banking and we need to analyze what exactly going wrong with the different types of product. Like suppose we take a mortgage as an example, and there are a lot of defaults that are happening. Then we need to analyze where exactly we have went wrong. Loan default, right? So why loan default is happening, whether this customer will going to default our loan in future or not, and based on that we will be implementing some measures, because as the in the advent of Basel II and Basel III norms, bank wants very robust credit risk management mechanism, right? For this, we need to curb this, uh, curb the defaulters or like default rates. In order to do that, we can take advantage of some machine learning techniques. Loan default, very good example. Loan default is the business challenge in banking sector. Maybe, so business problems. What are the business problems? What is the definition of business problems? It is nothing but a long term or current challenges. ये एक प्रकार के challenges हैं actually. Problems क्या है? ये challenges है हमारे लिए, हमारे business के लिए. एक एग्जांपल प्रकाश जी ने दिया, राइट. और दूसरा एग्जांपल हमारे पास हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि maybe to increase revenue, to increase the revenue, how to increase the revenue, right? These kind of problems becomes obstructors for their business goals. These challenges act as obstructors, right? Impediments to the business goals. So let's talk about Amazon's business problem. Let's say for offline business and for retail outlet, we can see the sales agent shows us different things, and we could select any one of them generally, right? But nowadays everything went online, and how
any platform like online platform appoints salesman to showcase similar items of the stuff that you want to buy by implementing the recommender system, right? So this is a problem because everything is going online, and now we don't have salesman to showcase or to show you the similar stuff, similar products. Let's say you want to buy a phone of range 10,000 to maybe 20,000, and you saw one phone, one maybe Motorola handset. So it will also show you the recommender system will also show you the Samsung mobile, maybe the other, Vivo mobile and all. This is nothing but you are getting the personal salesman in this format. So it's like it is also helping companies for their upselling, or let's say cross selling. These platform can also upselling. Upselling means अच्छा आपने एक टी शर्ट लिया है 1 महीना पहले, तो आज आओगे तो आज फिर से मैं आपको टी शर्ट दिखाऊंगा, अपसेलिंग। अगर आपने लैपटॉप लिया है तो मैं क्या करूंगा आपको कि लैपटॉप का एक माउस, लैपटॉप के लिए माउस ले लो, एक मे भी स्पीकर्स ले लो, राइट? इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो एक प्रोडक्ट हम लेते हैं, उसके साथ हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लेते हैं। ये इम्प्लीमेंट होता है थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। मोबाइल लिया तो बोलेगा कि केस भी ले लो, इसका बैक केस भी और स्क्रीन गार्ड भी ले लो, तो 10,000 की बजाय उसका रेवेन्यू अब हो जाएगा 10,800, क्योंकि ये दोनों लिए मैंने। तो ये हो गया क्रॉस सेलिंग और उससे रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये एक, और आप सेलिंग जो होती है वो रिकमेंडर सिस्टम के थ्रू होती है। रिकमेंडर सिस्टम जो कि एक टी शर्ट दिखाया, तो हम ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर टी शर्ट 2-3 कलर्स के दिखाया और हमने दोनों भी ले लिए और टी शर्ट ही ले लिया हमने, तो उसको बोलते हैं हम रिकमेंडर सिस्टम। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, जो इस टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम एआई थ्रू और डेटा साइंस के थ्रू कर सकते हैं। So let's come back now and now talk about other business challenges, क्योंकि एक तो हमने देख लिया। So second business problem might be your financial issues. Financial issues like maybe inability to finance, let's say finance debt. आपने कर्जा तो ले लिया, but you are unable to pay back due to maybe tight credit conditions, right? So we can have these kind of financial issues as well with our organizations. We can also have reputational challenges. Reputational challenges we have, which, for example, reviews of any product on Amazon, let's say. If customers are complaining about your product quality, it might hamper your reputation. So उसका solution क्या है? अगर reviews है तो उसको मान के चलिए कि हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसी ने क्वालिटी खराब बोल दिया, या किसी ने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम बोल दिया, या फिर कॉस्ट वेरी हाई बोल दिया, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 10, 15, 20, 100 कमेंट्स है तो हम आइडेंटिफाई कर भी लेंगे, बट अगर 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ अगर रिव्यूज है, तो उसमें से कैसे आप डिसाइड करोगे कि यार मतलब क्या, किसने क्या बोला है? या फिर यहाँ पे काम आता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
NLP। NLP के कुछ मॉडल्स हैं, कुछ टेक्निक्स है, टॉपिक मॉडलिंग। तो हम टॉपिक मॉडलिंग यूज करके हम इसको टैकल कर सकते हैं। अब टॉपिक मॉडलिंग क्या करेगा, इनमें से टॉपिक दे देंगे कि मैक्सिमम ऑकरिंग जो वर्ड्स है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वो अलग करके आपको दे देंगे कि टॉपिक वन में ये बोला जा रहा है कि कॉस्ट हाई है या फिर जो भी है कॉस्ट रिलेटेड। टॉपिक 2 में बोला जा रहा है कि इसकी क्वालिटी का इश्यू है, और भी कुछ क्वालिटी रिलेटेड रिव्यूज आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स है उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको फिर कितना परसेंट लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है वो भी एनालाइज करके हम मेजर्स ले सकते हैं, right? और इसको हम एक्चुअली रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे इस बिजनेस चैलेंज को। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, डेटा साइंस का सॉल्यूशन इस बिजनेस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, और क्या हो सकते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स? तो मे बी अ डिमांड इशू। Demand issue might include changing customer needs, over the period of time, right? Over the period of time। तो यहाँ पे ऐसा है कि कस्टमर्स के नीड्स चेंज हुए हैं। जैसे हम 2010 तक में भी हम टाइपराइटर यूज करते थे, अभी भी लोग करते हैं बट कम। We were using typewriters up to, let's say, 2010 maybe, but now we shifted to printers and demand for typewriters is very low now. If you still supplying this item in the market, you will not get enough demand, right? You need to shift your attention making other products like a printer. Now this is a demand supply issue. There is one more change, there is one more change reason, right, for changing the demand, and that is cultural shift. Customer need is a one reason. The second reason is the cultural shift. ये कल्चरल शिफ्ट क्या है? तो कल्चरल शिफ्ट यानी अभी हम देखते हैं कि people nowadays are shifting from junk and oily food to comparatively healthier snacks. Junk food to healthier, not healthy but healthier, relatively healthier snacks. उसको काफी सारे स्टार्टअप्स बाजार में आ भी गए हैं, आपने शार्क टैंक में देखे होंगे। तो ये भी एक शिफ्ट है, उस हिसाब से आपको आपका बिजनेस को मोल्ड करना पड़ेगा। फिर एक बिजनेस प्रॉब्लम है कि प्राइस कंपटीशन काफी है अभी। प्राइस कंपटीशन, अगर प्राइस कंपटीशन है तो लाइक वी कैन एक्सप्लेन इट थ्रू ओला वर्सेस उबेर एग्जांपल, ओला उबेर एग्जांपल, राइट? So generally we have both the apps installed in our phone, and both these players try to optimize their cost. तो ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं लोग? तो सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। For this, maybe Ola is showing 55 rupees. When I close this app and open Uber app, let's say Uber showing 60 rupees. फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ए ऐप बंद करके मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, तो उसको पता चल जाता है कि अरे हाँ ये फिर से आया है, ये बंदा दो मिनट पहले ही आया था, लॉग इन किया था उसने, तो फिर से आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, 55 की जगह पे 57, 58 कर दूंगा। फिर भी आपको लगेगा कि अरे यार उबेर पे तो 60 रुपए में हो रही थी वो टैक्सी, अभी तो 58 में हो रही है, तो मैं ये बुक करता हूँ। तो ये 3 रुपए का ज्यादा फायदा हो गया। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन
उसके लिए ये लोग यूज कर रहे हैं डायनामिक प्राइसिंग। तो ये प्राइस कंपटीशन की वजह से कुछ आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसको कॉस्ट को भी आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन एआई टूल्स की हेल्प से हो सकता है। तो प्राइस कंपटीशन कैन लोअर योर प्रॉफिट मार्जिन, that's why we can use data science techniques to optimize the prices. So another issue can be a customer relationship. Customer relationship, right? For example, let's say customers who are unhappy with our product or services, so they are likely to cancel their services. Not happy customers or unhappy customers. Might opt for Prime Video, as Netflix has not having a good content these days. उनको कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको देना है, नहीं तो आप शिफ्ट हो जाओगे नेटफ्लिक्स से प्राइम वीडियो के ऊपर। नॉट हैप्पी कस्टमर्स, या फिर आपका प्राइस है, कुछ भी है, कुछ भी रीजन है। तो दिस इज अगेन अ सिमिलर केस दैट वी टॉक्ड अर्लियर, एंड इट इज अ स्टैंडर्ड केस ऑफ एनएलपी अगेन। we do have NLP solutions for that. तो NLP क्या है क्या नहीं, वो सारा चीज हम ये 9 महीने में सीखेंगे। उसका अभी कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आपको एक ओवरऑल आइडिया भी आ गई तो सफिशिएंट है। राजेश जी, इसको अगर ऐसे समझे, जितनी प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं अलग अलग प्रॉब्लम्स में ही प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जिसके लिए क्लाइंट आपको किसी कंपनी को अप्रोच करेगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि देखो मैंने जो अभी मेसीज अगर किसी को पता है तो, या फिर चलिए मान के चलिए अमेजोन का ही एग्जांपल लेते हैं, amazon.com। तो अमेजोन के ऊपर जो हम कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे अभी। एक आध ये माउस है, या फिर माउस की जगह पे मोबाइल सर्च करते हैं। ये मोबाइल है और ये देखो होता क्या है कि ये बैकएंड में जो डेटाबेस में डेटा है वो ये कॉलम्स है। ब्रांड कॉलम होगा, मॉडल नेम कॉलम एक होगा, वायरलेस कैरियर एक कॉलम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉलम हो, सेलुलर टेक्नोलॉजी, अबाउट दिस आइटम है। अबाउट दिस आइटम में ये डिस्क्रिप्शन है उसका, मतलब ये डिस्क्रिप्शन नाम का एक कॉलम रहता है बैकएंड में। तो इस कॉलम में इतना सारा डेटा है। अभी अगर मुझे सब्स्टिट्यूट आइटम्स दिखाने हैं आपको, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा कंबाइन करके लेता हूँ, उसके बाद इसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करता हूँ और सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करता हूँ इस प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में, ये इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और मैं आपको बोलता हूँ कि प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। हर किसी में अलग अलग लॉजिक लगाया है। ये जो फीचर्स है 4 स्टार एंड अबव, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, तो ये अलग अलग बैकएंड में लॉजिक रहते हैं इसके। सिमिलर रिलेटेड है तो मे बी कुछ अलग लॉजिक लिखा होगा। सब्स्टिट्यूट है तो अलग है, कंपेयर है तो कंपेयर मतलब कि बहुत सिमिलर आइटम्स है, उसमें से सिमिलैरिटीज को लेट्स से 80% है, 90% है, 100% है, तो ही वो इसमें आ जाएंगे और आपको कंपेयर करके देगा वो। तो ये तो हो गया आपका रिकमेंडेशन सिस्टम। ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह ट्विक करके वो लोग रिलेटेड आइटम्स उसके ही मान के चलिए कि रिलेटेड ही है बट 4 स्टार एंड अबव है, तो वो सिर्फ सॉर्ट आउट करके आपको दे रहे हैं वो लोग। और कितने देना है तो 40 ही पेजेस, 40 पेजेस में मान के चलिए 5 और ये 6 7 एक 70-80 जो भी है, 100-150 फोन्स वो आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर,
इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का है। यहाँ मैं काम किया हूँ, मैं काम कर चुका है इस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एनालिसिस है, जिसको हम मार्केट बास्केट एनालिसिस बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर में हम ये एनालाइज करते हैं कि मैक्सिमम कस्टमर्स ने कौन से 2 या 3 आइटम साथ में लेके वो चेकआउट किया है उसने। तो हम उसके लिए उसके 2 टेबल्स एनालाइज करते थे। एक तो था आपका एड टू बैग और दूसरा था प्रोडक्ट परचेस। तो एड टू बैग में भी कभी कभी हम सिमिलर आइटम्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स ऐड करके रखते हैं। और फाइनल तो चेकआउट प्रोडक्ट ही है हमारे पास, जो कि परचेस टेबल से हमें मिल पाते हैं। दो टेबल को कंबाइन करना है और इसको एनालाइज करना है। तो 5-6 टेबल्स होते हैं जनरली। हम लॉगिन करने के बाद जो पेज व्यू का एक लॉग तैयार हो जाता है और वो डेटाबेस के पेज व्यू टेबल में चला जाता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट व्यू। सिर्फ प्रोडक्ट को व्यू किया है उसने, बाकी कुछ नहीं किया, उसका अलग टेबल है। फिर आता है प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट व्यू के बाद आता है ऐड टू बैग। तो ऐड टू बैग में कितना आपने इस कार्ट में डाले हैं आइटम्स, उसका एक अलग सा टेबल आता है। और बाद में आता है प्रोडक्ट परचेस, जो कि हम फाइनल प्रोडक्ट परचेस करते हैं। ये तो अलग अलग हमें चैलेंजेस मतलब जो है उसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आपकी टीम होगी या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी वर्क इन सोलो, लाइक वी जनरली आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। सो अभी तक तो ऐसा नहीं था कि मेरी टीम है और मैं टीम में काम कर रहा हूँ। मैं आइसोलेशन में काम करता हूँ। एक्चुअली मेरा काम एंड टू एंड होता है। जैसे मैं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट में ही लेता हूँ, जनरली रिक्वायरमेंट लूंगा, जो कि जनरली बीएच करते हैं काम नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, राइट। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके जो आर्किटेक्चर है या फिर डिजाइन है, वो भी हम ही देखते हैं जनरली। वो टूल्स देते हैं वैसे जनरल, जो कि गिटहब है या फिर जो भी आपका ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, क्लाउड है, वो बोल देते हैं आपको कि ये हम यूज करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको तो बता दो। जैसे हमें एक EC2 इंस्टेंस चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, तो हम उनको बता देते हैं पहले ही कि हाँ शायद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो उसकी बिलिंग वगैरह फिर निकाल के फिर वो एक आध इंस्टेंस हम ले सकते हैं इसका। वो भी मतलब पूरा काम हमें देखना पड़ता है। तो उसके बाद आता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट डेवलपमेंट में आता है आपका यूनिट टेस्टिंग वगैरह, वो भी हमें ही करना पड़ता है। और डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होता है, जो कि मैं खुद परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग वगैरह करता हूँ। तो जनरली मैं ही ये भी काम मैं ही करता हूँ, कि आप भी वही करोगे। अगर अभी कुछ कंपनीज है जिनमें ये अलग अलग रोल्स अभी सेग्रीगेट कर रहे हैं वो लोग। और टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट। तो जनरली डेटा साइंस के बंदे ही डिप्लॉय भी करते हैं मॉडल्स, अगर बेसिक डिप्लॉयमेंट है तो। अगर लेवल 3 लेवल 4 डिप्लॉयमेंट है तो फिर अलग टीम उसकी रहती है। और इंटीग्रेशन का वगैरह काम जो है फिर वो आउटसाइड और ये रहता है, स्कोप रहता है, वो डेवऑप्स के बंदे करते हैं। अगर API गेटवे से इंटीग्रेशन वगैरह कुछ RPG से करना है तो वो काम आपका नहीं है। प्रॉक्सी URL वगैरह वगैरह वो पूरा उनका काम है। इवन फ्रंट एंड अगर कुछ डेवलप करना है तो हमारा वो नहीं है काम। जैसे कि यहाँ पे वो जो फीचर दिखता है वो मुझे ही नहीं पता है कि सॉरी कि वो अमेजॉन, राइट। तो मान के चलिए कि ये ऐसा दिखता है, ये मुझे नहीं पता है। मैंने सिर्फ बैक एंड में वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उनको निकाल के दे दिए हैं, उनका सपोर्ट ये है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये है, ऐसा ऐसा है, वो पूरा एनालाइज करके मैं देता हूँ। उसके बाद फ्रंट एंड इंजीनियर जो भी है वो हर एक जैसे एक आइटम है जैसे कि ब्रश है, तो ब्रश के साथ वो टूथपेस्ट भी साथ में लेगा, और जो भी है टूथपिक वगैरह वो भी साथ में लेगा। मान के चलिए 1-2 आइटम साथ में लेगा वो।
तो ब्रश के सामने हम ऐसे आइटम लिख के रखते हैं और उसका कॉन्फिडेंस या फिर उसका सपोर्ट लेवल लिख के उनको दे देते हैं ये CSV फॉर्मेट में। हर किसी का अलग अलग होता है। जहाँ पे हम मतलब उससे पहले हम कस्टमर सेगमेंटेशन के काम करते थे, उसमें जो हमारा जो आउटपुट रहता था वो फिर से हम टेबल SQL टेबल या फिर जो भी आपका टेबल है, डेटाबेस है, DB का टेबल, उसमें हम पुश करते थे। तो ये भी काम हम ही करते हैं, कोई नहीं दूसरा करता। और DB के बाद उसका अगर विजुअलाइजेशन करना है तो वो भी काम हम ही करते हैं। बट अगर कंपनी के पास अगर बंदे हैं विजुअलाइजेशन के, एनालिटिक्स के, तो एनालिटिक्स डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, विजुअलाइजेशन। तो ये तो मतलब डिटेल में मैं समझाता रहूंगा ये डिजाइन वगैरह क्या है, कैसे हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम? Okay, we are discussing about the customer relationship issue, right? So until now we discussed some problems, but what will be its solution? How we will be implementing? So earlier these problems are handled by operations department or finance departments or experts. Earlier these challenges handled by operations department या फिर फाइनेंस वाले लोग या फिर कोई एक्सपर्ट है उस फील्ड का, उसको बुला लिया, उसको हैंडल करने के लिए बोला। एंड अर्लियर डिसीजन आर बेस्ड मोस्टली बेस्ड ऑन थियरी और हाइपोथेसिस। तो प्रीवियसली क्या होता था कि हम जो डिसीजन लेते थे, डिसीजन मेकिंग मोस्टली बेस्ड ऑन थियरी और असम्पशंस। मुझे ऐसा लगा तो मैं करूंगा, डिसीजंस, या फिर कि मैं ऐसा चाहता हूं तो मैं वैसा ही करूंगा, assumptions के ऊपर हम डिसाइड करते थे पहले। So we will be consider now 4 different scenarios with the help of which we were used to solve those business problems. तो पहला है decision based on data and theory. सेकंड सिनेरियो है हम डिसीजन कैसे लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ओनली डेटा, विद द हेल्प ऑफ ओनली थियरी एंड नो डेटा नो थियरी। तो कुछ नहीं है हमारे पास, ये तो काफी वर्स्ट केस होगा। जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और सारे बंदों को निकाल दिया। मतलब हाँ ठीक है, जरूरी था, बट इतना जल्दी निकालना डायरेक्ट CEO को, राइट? तो ना डेटा है ना थियरी है, मुझे ऐसा लगता है तो मैं करूंगा, बस वो हिसाब किताब है वहां पे। बट what do you think the best option we can have to decide? Let me help you by defining these terms. Okay, so we can have past data to predict the future. डेटा क्या करता है? डेटा एक्चुअली हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब पास्ट डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा जिसको हम बोलते हैं पास्ट डेटा। टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ये क्या करेगा? भविष्य बताएगा हमें। और दूसरा है थ्योरी। फिर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? थ्योरी इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन समथिंग। ये थ्योरी इसके लिए बनी है कि हम कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाए, उसके लिए हमने थ्योरी बनाई। तो अभी आप बता सकते हो कि बेस्ट वे टू डिसाइड क्या है, बाय यूजिंग डेटा और बाय यूजिंग डेटा एंड थ्योरी। right, very good. Data and theory, Yes. we can say. So we will be seeing why we also need theory for decision making apart from the data, क्योंकि हम तो डिसीजन साइंस के बंदे हैं या फिर
डेटा साइंस क्या है, डेटा के ऊपर सिर्फ हम क्यों नहीं डिसाइड करते हैं, थ्योरी भी क्यों लगती है हमें डिसाइड करने के लिए कुछ, राइट? So now I am going into some technical details. If you don't understand, just neglect it. But ये आसान है, समझ में आ जाएगा. So, as I will be covering the concept which is known as hypothesis testing. ये थ्योरी को समझने के लिए मैं एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस मतलब assumptions. Whenever we have the data, we can say that we are in a lucky position because data and theory both are available in that case, right? But we can have data to test theory, and we can also use theory to gauge our or to measure our analytics tools, to gauge our measurement as well. हमने क्या मेजरमेंट लिया था उसको भी हम गेज कर सकते हैं. अब आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब. अब मान के चले कि ये मेरा 3 साल का प्रॉफिट है मेरे कंपनी का. तो शुरुआत में 1 लाख था, फिर 2 लाख है, फिर 3 लाख है. तो थ्योरी क्या बोलती है यहाँ पे कि थ्योरी इज सेइंग दैट माय रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, माय रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. और डेटा will validate our theory. It will validate our theory with the help of it act as a empirical evidence. मतलब साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास अब कि हम प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरी को कि माय रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. तो ये है थ्योरी और एक डेटा मैंने कंबाइन कर दिया. ठीक है. सो हेंस वी कैन से दैट द डेटा एंड थ्योरी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये कॉम्प्लीमेंट्री है. अभी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सिखाया है, राइट? तो अभी ज्यादा समझ में आ गया होगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें क्या होती है. वी कैन यूज द डेटा टू इम्प्रूव और क्रिएट अ थ्योरी. To explain this, I will put example of hypothesis testing to explain you the relationship between data and theory. This was done by statisticians. तो पहले जो ये थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो लोग होते थे तो हम स्टैटिस्टिशियन बोलते थे. Currently we are also doing the similar work. Just technology and tools got changed because nowadays we are using Python and R for that purpose. Earlier, mathematician used to perform some, calculations, mathematical calculations, mathematical formulas were there, and with the help of those formulas, they are arriving at the conclusion. Let's try to understand with the help of example. Whether or not न्यू, क्योंकि हम सब लोगों को मार्केटिंग का एग्जांपल ज्यादा क्विकली समझ में आता है. एडवर्टाइजिंग कैंपेन costs, whether or not new advertising campaign costs increased sales. क्या मेरा नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मेरे सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा या नहीं मुझे. तो इसके लिए हम ये 2 ग्राफ समझते हैं. पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक है ग्राफ, और ये थोड़ा सा ऐसा है. ठीक है. तो सेल्स वर्सेस स्पेंडिंग, ये है सेल्स, ये है स्पेंडिंग. ये भी सिमिलर ग्राफ है, सेल्स वर्सेस स्पेंडिंग. तो आपको क्या लगता है कौन सा मोर अप्रोप्रिएट है,
स्पेंडिंग हम बढ़ाते हैं तो सेल्स भी बढ़ेगा, ऐसा या फिर ऐसा, कुछ समय बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। अभी स्पेंडिंग करो, कुछ काम नहीं करे, कुछ काम नहीं आएगा स्पेंडिंग। Second one. राइट वन। Yes. Yes. Anybody pitching for left one? मैं I'll be pitching for right, क्योंकि जितनी स्पेंडिंग उतनी सेल। अगर स्पेंडिंग पावर नहीं है तो सेल्स कैसे होगी? सेल्स बढ़ती है, हर अब बार बढ़ेगी। कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, स्पेंडिंग ही नहीं है, पैसे ही नहीं खर्च It's depends on the consumption, na? Depends. Saturation will come, right? After some period of time, there will be a saturation. Saturation. हाँ, If we have customers, how spending will increase the sales? The like saturation point. राइट, सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो शायद स्टैग्नेंट हो जाए। तो मोर और लेस काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा है। जैसे कि मान के चलिए बैजूस का केस है, तो काफी कुछ स्पेंडिंग किया, उस एक समय के बाद वो स्टैग्नेंट रहा और अभी डिक्लाइन कर रहा है। तो इतने भी स्पेंडिंग एजुटेक सेक्टर में तो स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो माउथ पब्लिसिटी है। जैसे आप अच्छा रिजल्ट दोगे तो वैसे भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं आपके पास। हाँ, मतलब आज का सक्सेस हो सकता है कि आज सक्सेस उतना ना मिले, 2-4 साल बाद मिले, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी को समय टाइम लगता है। बट हाँ, एक ऐसे कुछ दिमाग में हमारे रहता है मॉडल्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज से हमें पता चलता है, तो उस बेसिस के ऊपर हम ये जनरलाइज करते हैं पर्टिकुलर चीजों को, कि हमने ऐसा ज्यादा से ज्यादा केसेस में ये वाला सिनेरियो पाया है, ये वाला थोड़ा सा कम ही पाया है कि स्पेंडिंग करते रहे और सेल्स बढ़ रहा है। मतलब now Yes. suppose right, so now suppose company believes that spending more money on advertising leads to increase the sales, say for smaller duration, we can call this as a hypothesis। तो ये क्या है? हाइपोथेसिस है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए, सिर्फ यहाँ तक ही। We are believing that sorry, to increase value to increase the sales of value of any product. the spending more money, मतलब हम ये हाइपोथेसिस अभी हम पुट कर रहे हैं, स्पेंडिंग मनी मोर ऑन एडवर्टाइजिंग लीड्स टू इंक्रीज द सेल्स, सेल्स भी मेरी बढ़ रही है। ये एक अजम्पशन हो गया है। लेट्स से फॉर 2 months, 2 महीने के लिए call this as an assumption. Now, reaction to this hypothesis, company can start spending on advertising over the period of some time, like 2 months. Okay. After 2 months spent, they can check whether their hypothesis was correct or not with the help of the data. They may perform hypothesis testing by using statistical tools. We generally have 2 versions of hypothesis. एक तो ये हो गया, ये इस assumptions को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर हाइपोथेसिस दैट वी नीड टू प्रूव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। And the second one is the null hypothesis. Actually, null hypothesis means we could say that if we increase our spending, there is no increase in sales. हम स्पेंडिंग कर रहे हैं बट सेल्स बढ़ नहीं रहा है, सेल्स स्टैग्नेंट है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट और इफेक्ट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि स्पेंडिंग ज्यादा करने से सेल्स बढ़ेगा, अगर 2 महीना किया तो ही, 2 महीने इतना ही सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं टाइम विंडो।
और एक हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि स्पेंडिंग ज्यादा करने से सेल्स नहीं बढ़ता, उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस काफी मुंडेन होता है, बोरिंग होता है हाइपोथेसिस। तो डेटा साइंस वाले बंदे या फिर स्टैटिस्टिशियंस विल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हम कोशिश करते हैं प्रूव करने की इसको। When we increase spending on advertisement, when we increase the spending on advertisement, we are expecting that our sales will also increase, and we are now trying to prove this alternative hypothesis. We generally use some statistical methods like t-test, ANOVA test, chi-square test, तो बाद में पढ़ाता जाऊंगा मैं आपको। So I'm using these jargons, but you can skip this terminology. The test which I just mentioned, like ANOVA test and all, uses p value. यहाँ पे हम एक p value calculate करते हैं इसके लिए। If we get the p value less than the significance level, अभी हमें क्या एक p value मिली है, probability value, which is lower than the significance level, which is मान के चलिए कि lesser than the significance level, then we can reject the null hypothesis and conclude that increased advertising spend would increase the sales. ये p वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है, मैं वो आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा। तो p वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको कंपेयर करते हैं, ये फिक्स जो हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल रहता है अल्फा 5%, तो उससे हम वो उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो लेस देन 0.05 है तो हम नल हाइपोथेसिस इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे, बोलेंगे कि हाँ हाँ ये सही था। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि सिग्निफिकेंस लेवल हम क्यों चेक करते हैं या फिर क्यों चेक करने की जरूरत भी होती है। तो लेट्स से कि these two are वेब पेजेस ऑफ amazon.com। तो यहाँ पे हमने एक बटन इंट्रोड्यूस किया, मतलब पहले यहाँ पे एक बटन था, फिर हमने यहाँ पे वो शिफ्ट किया दिया, इस बटन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और अभी कुछ ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं हम, कुछ ट्रैफिक इस पेज के ऊपर है, कुछ इस पेज के ऊपर है ट्रैफिक। और ये इंट्रोड्यूस होने के बाद जो क्लिक थ्रू रेट है CTR, वो हम कंपेयर कर रहे हैं इस 2 वर्जन्स का, और बोल रहे हैं कि ठीक है, एक ऑब्जर्व हमने ये किया कि इस क्लिक थ्रू रेट था वो 55 यूजर्स इसको क्लिक कर रहे थे, और इस पुराने वाले केस में मान के चलिए कि 50 यूजर्स क्लिक कर रहे थे इस बटन पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बेहतर है, और इसको हम ऐसा मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हम if we change the place of this button, we are getting higher click through rate. If we shift the button from right to left pane, we are getting more CTR। तो अभी के लिए तो आपको क्या लगता है, ये सही है? ये अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है मेरा, क्या ये सही है? It's depends on the duration. How मान much के time we चलिए have. ड्यूरेशन हम कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्लिक थ्रू रेट, इस बटन के ऊपर कितने लोगों ने प्रेस किया, बस इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। और हाँ मतलब ठीक है, टाइम का अगर बोलना है तो 1 दिन में, ये भी फिक्स है। चलिए इतना ही हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं।
तो क्या हम जैसे इसको काउंट कर रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट यूजर ना आए उसके पास उतने क्लिक के लिए। राइट राइट राइट, बट अभी आपका जो लॉजिक है वो मतलब सही है। ऐसा मान के चलिए कि हमारा एक ही दिन का डेटा है हमारे पास, उसी के ऊपर डिसाइड करना है। हमें फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में हम एज ए डेटा साइंटिस्ट हम कभी नहीं सोचते। जो हमारे पास है उससे ही हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर तो राइट वाला ही सीखेंगे बेटर। हाँ बेटर राइट, बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये तो आंखों को दिखने के लिए हमें लगता है कि अरे हाँ बेटर है, ये 55 है और ये 50 है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे बटन शिफ्ट कर दूंगा और हमारा मेरा क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और मैं इम्प्लीमेंट ये चीज कर दूंगा। बट होता क्या है कि एक टर्म है यहाँ पे, वेदर दिस एक्सपेरिमेंट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है मेरा एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्या? सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि वो 0.05 से कम वैल्यू मुझे प्रोबेबिलिटी की पी वैल्यू की मिल रही है क्या? नहीं तो फिर मैं बोलूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा मत करो, या फिर ये चीज इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे एक छोटा सा बटन है बट काफी कुछ फीचर्स चेंज हुए हैं और क्लिक थ्रू रेट उतना ही है। उस केस में हमारे रिसोर्स लग रहे हैं काम क्यों, मतलब हम हमें काफी सारे रिसोर्सेस लग रहे हैं या फिर जो भी है, टाइम स्पेंड ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से वो सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारा मूव, हमारी जो ये स्टेप है उस हिसाब से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। दिखता भी है हमें कि 55 है, 50 है, अगर ये राइट वाला 250 होता तो हम कहते सिग्निफिकेंट है। कितना कितना? अगर 250 होता, अगर अराउंड 50 से 250। हाँ राइट राइट। अभी आप क्या कर रहे हो, एक लॉजिक लगा रहे हो कि हाँ इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस, राइट? ये वही है, एक्चुअली मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कब डिसाइड, कैसे डिसाइड होता है? अगर 30 और 55 के बीच में, उसके लिए भी हमें कुछ टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं हम उसको। मैं जब वो होगी तब पढ़ाऊंगा, ये डिटेल में हम पढ़ लेंगे कि किसको हम, ये कोई भी फिगर रहने दो, हम इस फॉर्मूले में बिठाते हैं उसको और फिर बाद में इससे कंपेयर करके एक कंक्लूड करते हैं उसको कि वेदर वी आर एक्सेप्टिंग आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और वी आर रिजेक्टिंग आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Okay, so I think we are like adding all the cost or like efforts. After that, we are checking right decision or not. हाँ राइट, मतलब ये भी एक टेक्निक है कि आप मतलब कॉस्ट वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हो, और ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी है, ये सिंपल है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट कि हाँ उतना वो एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्या, वो मैथमेटिकल मैथ बेस्ड है ना ये, तो ये कॉस्ट बेस्ड नहीं है। जो आप बोल रहे हो कॉस्ट बेस्ड या टाइम बेस्ड, ये मैथ बेस्ड टेक्निक है, तो उनका लॉजिक उन्होंने लगाया है, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है वो जो मतलब उनके फार्मूलास है। सो ये तो पहले होता था, स्टैटिस्टिशियंस जो करते थे मोरलेस, हम भी वही करते हैं, बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सिर्फ नहीं करते हम, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग काफी छोटा एरिया है डेटा साइंस का, और काफी कंपनीज अफोर्ड नहीं करती हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बंदा एक रखना या फिर एक टीम रखना। तो जनरली बहुत कम कंपनी में, जैसे कि अमेजोन है या फिर अदर लार्ज रिटेल कंपनी जैसे अलीबाबा है, वही करती होंगी, बाकी तो बहुत सारी कंपनीज नहीं करती ये सेपरेट एनालिसिस। बट हाँ मैं आपको उस समय ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये चीजें। तो nowadays we all know that with internet revolution, like 4G आ गया, 5G आ गया, अफोर्डेबल नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस,
Now we are generating almost 1.2 quintillions of data each year since 2018. 2018 से हम इतना 1.2 क्विंटिलियंस ऑफ डेटा हम जनरेट करते आ रहे हैं, और ये काफी बढ़ रहा है। जैसे 5G आ गया तो और बढ़ेगा वो, तो डेटा काफी ज्यादा आ रहा है। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम, दैट्स व्हाई एक्चुअली वी आर मूविंग फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टू प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कि अभी प्रिस्क्रिप्टिव ही नहीं, कॉग्निटिव तक हम पहुंच गए हैं, क्योंकि कॉग्निटिव मॉडल्स काफी सारे आ रहे हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह हम जो बोलते हैं, काफी हद तक कॉग्निटिव काम कर पा रहे हैं, तो उस साइड पे भी हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। And now we are going to see the terminologies in analytics, like descriptive, diagnostic, prescriptive, cognitive. देखो ये ग्राफ है, ये कैसे इवॉल्व होता आ रहा है। पहले तो थी हमारी डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे हमें आंसर मिलते थे व्हाट, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन वाले लोग होते थे, पावर बीआई वाले, टैब्लो वाले लोग, कि ये बताएंगे आपको कि डेटा क्या बोलता है। So we are again putting one marketing example here so that you could understand very easily. So we can say that marketing team can get more information about which social media platform delivers the best return of advertising investment. सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये तो पास्ट डेटा आपको बताएगा कि सबसे ज्यादा आजकल मे बी इंस्टा चल रहा है, फेसबुक थोड़ा सा कम हो गया, तो ये तो डेटा मिल जाएगा। आप उस डेटा के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि which social media platforms is best for my advertising campaign. Now comes diagnostic एनालिटिक्स, दूसरा टाइप है डायग्नोस्टिक का। यहाँ पे हम वाई के आंसर ढूंढते हैं। इन डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई दिस हैपेंड और व्हाई पर्टिकुलर थिंग हैपेंड इन द पास्ट। तो हम रूट कॉजल रिलेशन, रूट कॉज ढूंढते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, I will be again giving you marketing example here. Let's say marketing team look at unique characteristic of high performing social media advertisements compared to poorly performing advertisements to identify the reason behind performance difference. दो प्रोडक्ट है ऑलरेडी मार्केट में है, दो प्रोडक्ट का सोशल इंस्टा के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस है दो प्रोडक्ट्स का, इन दो प्रोडक्ट्स का, और इसका अगर कम है और इसका ज्यादा, ये ज्यादा परफॉर्मिंग है, इसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मैं क्या करूंगा, इसका ज्यादा परफॉर्मेंस क्यों है, ये डिफरेंस मैं एनालाइज करूंगा यहाँ पे इस डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में। अगर सर्टेन एड्स अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं भी उसके जैसा ही प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करूंगा, उसके एग्जैक्टली जैसा नहीं, बट वो क्या कर रहा है, किसकी वजह से उसका अच्छा एडवर्टाइजिंग यहाँ पे, मतलब उसका सेल्स बढ़ गया है, ये कैसे एडवर्टाइज कर रहा है, क्या नहीं, उस तो ये है आपका कॉजल। वी नीड टू फाइंड आउट रूट कॉज। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बोलते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे
ये आता है पास्ट डेटा। अगर मैं पास्ट डेटा यूज करूंगा तो मैं दोनों चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? तो कर सकता हूँ। मतलब ये तो कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ इन दोनों केस में, सिर्फ पास्ट के ऊपर पास्ट डेटा एनालाइज करके बोल रहे हैं कि ये ऐसा है बोल रहे हैं। बट प्रेडिक्टिव में क्या बोलते हैं हम? प्रेडिक्टिव, यहाँ पे मशीन लर्निंग शुरू होती है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। यहाँ पे बोलते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। ये पास्ट है बट फ्यूचर क्या होगा। थर्ड type of analytics is predictive analytics, in which we try to find what will happen in future. Here our machine will learn from the past data and predict the future, and from this machine learning comes in picture. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एग्जाम्पल देने की कोशिश की, वही मार्केटिंग वाले एग्जाम्पल, तो marketing team can predict how much revenue will our organization likely to generate in the upcoming advertising campaign. मतलब क्या? तो चलिए 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 तो रेवेन्यू था यहाँ पे, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया यहाँ पे, फिर और डाउन हो गया यहाँ पे, फिर थोड़ा सा अप हो गया, मान के चलिए थोड़ा सा और अप हो गया यहाँ पे। तो 2024 में कितना होगा? तो ये फाइंड आउट करते हैं हम टाइम सीरीज एनालिसिस के कुछ मॉडल से, अरिमा सरिमा टाइम सीरीज एनालिसिस। इसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो 2024 में जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, एंड व्हाई द रेवेन्यू डिक्लाइंड इन 2021। हो सकता है कि कोरोना आ गया और उसके कारण, कोविड के कारण वो कम हो गया मेरा रेवेन्यू। बट अभी मुझे पता चल रहा है कि हाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो 24 में तो बढ़ रही है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। So in this graph, we can predict the revenue 2024 with the help of past data. In this case, we are using predictive analytics, right? And now comes the last prescriptive एनालिटिक्स। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन मेक इट हैपन, हाउ वी कैन मेक इट हैपन। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी मेजर्स लेना चाहते हैं, वो हम कैसे ले लें, कैसे ले, ये हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब, डायग्नोस प्रेडिक्ट हो गया, अब प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम मरीज को। पहले तो ये पता चला हमें, हमने ब्लड टेस्ट किया, मुझे पता चला कि मेरी कोलेस्टेरॉल हाई है, मेरी कोलेस्टेरॉल 250 है। अब ये हाई क्यों है उसके पीछे में लग गया, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत सारा नॉनवेज खाता था, मेरी लाइफस्टाइल सेडेंटरी थी, मैं बेड के ऊपर ही बैठ के सारा दिन, और मैं जंक फूड भी खाता था। मुझे 12 बजे भूख लगती थी तो मैं चिप्स खाता था, और मैं ये 8 साल से कर रहा हूँ, तो मेरा कोलेस्टेरॉल बढ़ गया। अभी फ्यूचर प्रेडिक्टिव क्या होगा, मुझे हार्ट अटैक आएगा बोलता है मेरा मॉडल। अब तो भाई ऐसा करेगा तो 5 साल बाद तुझे अटैक आएगा, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा मेरा मॉडल। अभी ये हार्ट अटैक नहीं आए उसके लिए हम व्हाट वी कैन मेक इट हैपन, मेक इट हैपन मतलब हार्ट अटैक कैसे हैपन करना है वो नहीं, हम मतलब जो भी हम चाहते हैं कि नहीं नहीं अभी हेल्दी बनना है, तो हाउ वी कैन मेक इट हैपन। तो मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जो भी है, मुझे कुछ दवाइयाँ में भी खानी है, जो भी कुछ है, वो मेजर्स हमें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम लेते हैं।
तो हम फिर से वही एग्जांपल एक बार देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का, helping a marketing team determining what products to promote next quarter in order to generate more revenue. अगर मुझे ज्यादा रेवेन्यू करना है तो मैं नेक्स्ट क्वार्टर में कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करूं या फिर कौन से प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करूं। मुझे ये पता चला है कि लास्ट क्वार्टर में मेरे 3 प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे काम कर रहे थे, चौथा नहीं कर रहा था, बट अभी मुझे पता चल गया है कि चौथा फ्यूचर में भी काम नहीं करेगा और ये तीनों करेंगे। फिर से मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ये भी बता रहा है पास्ट डेटा को देख के। फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिस्क्राइब में क्या कर रहा हूँ कि इसको भाई कुछ करो, इसको प्रमोट करो, जो भी है डिस्काउंट दे दो, जो कैसे भी करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ऑल कैन बी डन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। एक रह गया, तो एक लास्ट कौन सा है, कॉग्निटिव एनालिटिक्स। अभी कॉग्निटिव एनालिटिक्स में क्या हो रहा है कि वी आर लेटिंग मशीन टू थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। हम मशीन को बोल रहे हैं कि भाई तू मेरे जैसा सोच और खुद से सोच, अभी मैं तुझे ट्रेनिंग नहीं दूंगा। सो दे कैन एबल टू नाउ लर्न themselves like which actions are rewarding, which actions are not rewarding, right? हमें पता है कि मेरे कौन से एक्शन रिवॉर्डिंग है, मेरे लिए रिवॉर्ड लेके आएंगे, कौन से नहीं लेके आएंगे। मान के चलिए कि मैं मतलब मैं जंप कर रहा हूँ एक 5 फुट से, 10 फुट से, 15 फुट से, तो मुझे पता चल रहा है कि अरे मुझे ज्यादा पेन हो रहा है। अगर मैं 1-2 फुट से जंप करूँ तो मुझे पेन नहीं होगा, 10 फुट से करूँ तो ज्यादा पेन हो रहा है। और 12 फुट से एक बार गिर गया था तो मेरी हड्डी टूट गई थी पैर की। तो अगर उससे भी ज्यादा कूदूंगा तो मैं मतलब हो सकता है कि मर जाऊं, डेथ हो जाए मेरी। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करने की जरूरत है कि आपको नहीं है, आपके पास वो कॉग्निटिव स्किल्स है, उसके जरिए आप ये सोच पा रहे हो कि नहीं मुझे ये लिमिट है होती है इंसान की, उससे ऊपर से अगर मैं कूदा तो मेरी डेथ हो जाएगी, राइट? So with the help of cognitive power, we could guess that jumping from the maybe 5th or 10th floor causes death. We don't need to do experiment to find out this, right? This will be learned automatically. ये तो क्षमता है हमारी, और ये क्षमता हम मशीन में भी डेवलप कर रहे हैं कि भाई देखो तेरे को थोड़ा पढ़ाऊंगा, तुझे खुद सीखना पड़ेगा बाद में। जैसे कि अभी ऐसा है कि मैंने अगर आपको पढ़ाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन दे दिए, तो आपको आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो नहीं आएगा। बट हाँ, आप खुद से कुछ चीजें सीख रहे हो और हो सकता है कि आप फिर बायोलॉजी के आंसर भी दे पाओ। तो ये तो हो गया आपकी कॉग्निटिव स्किल, ये कॉग्निटिवली आप डेवलप होते जा रहे हो धीरे धीरे। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि all these problems can be solved by using artificial intelligence, machine learning and data science. तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि अरे ये क्या 2-3 चीज जो हो रही है मैं इंटरचेंजेबल यूज कर रहा हूँ, तो क्या ये सेम है या फिर डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है? चलिए वो डिफरेंस आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। AI वर्सेस ML वर्सेस डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और क्या है डेटा साइंस में क्या क्या डिफरेंस है, यही है मेन डिफरेंस, राइट? तो पहले तो AI बोलते हैं। तो AI इज अ बिगर अम्ब्रेला। ये क्या है? अम्ब्रेला टर्म, ऑल कम्स अंडर AI, and AI is the broader concept of developing machines that can simulate human thinking and behavior. तो यहाँ पे क्या होता है? We are developing machines that can
simulate human thinking and behavior. तो हम इसको इंसानों जैसी थिंकिंग और जो सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप करने में इसकी हेल्प कर रहे हैं। और एमएल क्या है फिर? तो ये यहाँ पे आता है आपका एमएल। एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई where computers learns from the environment and use this learning to improve the process and experiences. Technical definition machine learning की। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि all machine learning is AI, but all AI is not machine learning. तो ये डिफरेंस क्या है फिर? ये वाला डिफरेंस क्या है? तो AI वर्सेस ML हम देखते हैं। Here, the goal of AI is to make smart computer systems like humans to solve the complex problems. जबकि ML का गोल का क्या होता है? ML is to machine learning is to the goal of machine learning is to allow machines to learn from the data so that they can give accurate output. यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डेटा लगता है इनको। यहाँ पे डेटा दो ना दो, ये यहाँ पे कोडिंग से काम कर सकते हो एआई का, बट यहाँ पे डेटा लगेगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस, यहाँ पे डेटा लगता है, वहां पे नहीं लगेगा। अब मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल मैं दूं तो एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर ऑफ रूम्स, देखो एक कॉलम है नंबर ऑफ रूम्स, कारपेट और प्राइस, और मुझे हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज येतोय का माझा? हो हो, तुमचा यायलाय। मी क्लास चलिए, सॉरी। चलिए, हम कहाँ पे थे? तो एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो देखो, नंबर ऑफ रूम्स है यहाँ पे। एक कॉलम हमारे पास कारपेट है और प्राइस है, और हम प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम प्राइस। तो डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास ऐसा है कि नंबर ऑफ रूम्स 3 है, कारपेट एरिया 600 स्क्वायर फुट है, और प्राइस उसकी 30 लाख है। नंबर ऑफ रूम्स 4 है, कारपेट एरिया 800 है, और प्राइस उसकी 50 लाख है। और नंबर ऑफ रूम्स 5 है, कारपेट एरिया 1000 है। और आप बताओ आप मुझे कि यहाँ पे प्राइस कितनी होगी? और मैं 3 ही ऑप्शन देने वाला हूँ आपको, 30, 50 और
65 65 65 राइट 65। और एक्यूरेट अगर आप बताते तो कितना बताते? एक्यूरेट तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है हाँ मतलब वही एज पर प्रोबेबिलिटी 70 होना चाहिए अगर हम इस डेटा को नहीं देखते तो। अच्छा हाँ जो भी है राइट, पर आपको ये पता चल गया है कि एक्यूरेट आंसर कुछ और है, बट हाँ अगर मैंने ये तीन ऑप्शन दिए हैं तो 65 के ऊपर आप जाओगे। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट लॉजिकल है, मोस्ट करेक्ट है। बाकी तो अगर कुछ है तो एरर है हमारा। अगर 70 इसका आंसर आ रहा है तो वो 5 लाख एरर है, हमारा मॉडल होता है एरर हमें मिलते हैं, और उस बेसिस के ऊपर एरर कम से कम हमें मिले इसका हम इसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं फिर मॉडल को। बट ये हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, हमारी मशीन भी ऐसे ही प्रेडिक्ट करती है। वो कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करके। एक्चुअली पहले क्या होता था कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, फिर हमारे पास थे क्वेश्चंस, और एक सिस्टम में पास करके हमें मिलते थे आउटपुट और आंसर्स। अब क्या हो गया है मशीन लर्निंग आने के बाद, हमारे पास है क्वेश्चंस, हमारे पास आंसर्स भी है, उसके ट्रेनिंग डेटा जिसको बोलते हैं हम, आंसर्स भी थे ना आपके पास, ये पहले दो तो क्वेश्चंस भी है आंसर्स भी है। अभी आपको एक रूल मिल रहा है और उसके बेसिस पे आप फिर से रिमेनिंग आंसर्स प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। एक रूल मतलब क्या, फॉर्मूला मिल रहा है आपको यहाँ पे। पहले तो फॉर्मूला mx प्लस सी था, उसी के बेसिस पे हम फिर ये कैलकुलेट करते थे। बट अभी आपको मोर कॉम्प्लेक्स और वो डेटा के बेसिस के ऊपर आपको एक मॉडिफाइड फार्मूला मिलेगा, उसको ये फार्मूला मिलेगा अब आपको। क्योंकि हर वक्त फार्मूला तैयार करने में मैथमेटिक्स लोगों को काफी समय लगता है, काफी कुछ रिसर्च करके वो फार्मूला तैयार करते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। बट अभी ऐसा है कि फार्मूला क्विकली तैयार हो रहा है हमारा किसी भी चीज का। तो ये है मशीन लर्निंग का कमाल यहाँ पे। हमने अभी ये देखा कि AI may need data, but machine learning needs data. But machine learning can only perform certain specific tasks on which it has given training or it has provided training. मैंने अभी आपको PCM का एग्जांपल पढ़ाया है, आपने आपको बताया कि नहीं PCM पढ़ा कि मैं बायोलॉजी के आंसर क्वेश्चंस पूछने लगा, तो हम नहीं दे पाएंगे। वैसे ही मशीन लर्निंग नहीं दे पाती आंसर, जितना पढ़ाया है उतना ही पूछो बोलती है वो, बाकी वो आंसर नहीं दे पाती। ये होगा AI और ML। अभी आता है इसमें DL, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। DL is a part of machine learning. Deep learning uses multiple layers of neurons. यहाँ पे अभी क्या है, न्यूरॉन्स का जाल है, जाली है, डीप न्यूरल नेटवर्क। अभी कुछ स्लाइड जो मैंने डिलीट किया वहां पे समझाया है मैंने कहीं कहीं पे। ये देखो यहाँ पे ये न्यूरल नेटवर्क है, ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है। अब आपको अगर कुछ गर्म चाय एकदम हाथ में रख दी तो आप फटाक से वो न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको सिग्नल देंगे आपके माइंड को कि आपको कुछ मतलब महसूस हुआ है, और आप जल्दी से हाथ आपका पीछे लो। तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जहां पे भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार नहीं हार्मफुल है मेरे बॉडी के लिए। तो ये जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, वैसा ही नेटवर्क हम अब आर्टिफिशियली तैयार कर रहे हैं। ये न्यूरॉन्स है और ये ऐसे नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं जो कि फुल्ली कनेक्टेड है।
ठीक है। और अब फिर मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में क्या फर्क है? तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अलग है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स uses multiple layers of neurons to extract high level features. High level features to extract. Deep learning used to extract high level features. मतलब क्या? तो एक बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में लोग ये जाते हैं, extract high level features. माइन्यूट डिटेलिंग जिसको हम बोलते हैं, छोटी छोटी डिटेल वो क्या लेंगे और एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दिया कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का। अभी ये बात समझो कि वो मान के चलिए कि कोरेगांव पार्क का वो ये है रेट्स है, कोरेगांव पार्क एक एरिया है और बाकी भी पुणे में बहुत सारे एरिया है, उसके लिए अलग अलग उसको पता है हमारे मॉडल को कि कोरेगांव पार्क में जनरली थोड़ी सी प्राइसिंग हाई है, या फिर बानेर ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए जहां पे प्राइस थोड़ी सी हाई है उस एरिया में। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स अगर मैंने एक नया डेटा दे दिया जिसका कारपेट एरिया मान के चलिए कि वही सेम था, नंबर ऑफ रूम्स 5 और कारपेट एरिया 1000 और प्राइस वो बताएगा 70 लाख, ठीक है। तो ये उसने मशीन लर्निंग मॉडल्स ने बता दी, बट एक्चुअल में क्या है कि डेटा में एक और मतलब एक चीज छुपी हुई है, जो कि ये मान के चलिए कि चार घर हैं एक करीब एक दूसरे के, और ये जो हाउस है या फिर ये हाउस है वो हॉन्टेड है, हॉन्टेड हाउस है, राइट। तो इसकी वजह से हिस्टोरिकल डेटा में एक चीज पाई गई है जो कि कहती है इसका जो नेबर घर है उसकी भी प्राइस उसकी वजह से कम है और इसकी भी प्राइस कम है। ओवरऑल कोरेगांव पार्क एरिया में ज्यादा है, बट ये घर हॉन्टेड होने के कारण इन दोनों की कम है। अब उसको नहीं पता है हॉन्टेड है नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। उसको तो ये पता है कि ये 3 घर की प्राइस क्यों लो है, तो इसको वो भी पता चल जाता है कि फिर इसको भी लो करो और इसको भी रिलेटिवली लो करो, थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा लो कर दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं हाई लेवल फीचर्स। कि वो हाई लेवल फीचर्स पे उसके न्यूरॉन्स जो है वो काम करते हैं। Now in deep learning, we are creating neural networks. Right? That's why, because of this, advantage of having the more accurate analysis or the more accurate predictions, deep learning getting popularity. So now अभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ पे डेटा साइंस कहाँ पे, कोई बताएगा कहाँ पे है इस फिगर में? अभी ये देखो मैं बताता हूँ टॉप ऑफ द एवरीथिंग, ये सब भी मिला के डेटा साइंस, ये सब मिला के, राइट। हाँ राइट, बट एक्चुअली ये सब मिला के तो है ही, इसलिए मैं सबके बीच में इसको इस सर्कल को माफ करना, एक्चुअली ये सर्कल मेरे यहाँ पे एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बट हाँ ये इट process all these 3 concentric circles and we will be getting a new this circle, we can call it as data science DS। और DS फिर ये बाहर का क्या है? तो अभी बाहर का बिजनेस प्रॉब्लम से यहाँ पे ये सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीस टूल्स। तो ये टूल्स से हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये तो बस टूल्स है, और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आती है। वो कहाँ पे आती है? तो ये यहाँ पे आती है, ये पूरा एन क्रॉस करती है, वो भी डीप लर्निंग भी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी क्या आता है फिर आपका मे बी डॉकर आ जाएगा, या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आ जाएंगे, आपके कंटेनर्स आ जाएंगे,
और क्या आएगा, एयर फ्लो वगैरह, डैग वगैरह आएगा, फ्रंट एंड के कुछ ये आएंगे, राइट, HTML या फिर जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो, CSS, फ्लास्क आ जाएगा, स्ट्रीमलीट आ जाएगी, जो भी आप फ्रंट एंड में यूज करते हो, पूरे वो टूल्स आपके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर आप उसको अभी ML इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, जो कि इसको ऑपरेशनलाइज करता है इस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये टूल्स है एक्चुअली। अगर मान के चले कि मुझे घर में दीवार पर एक फ्रेम नहीं बिठानी है, मुझे एस्थेटिकली मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ मेजर्स लेने हैं, ये तो मेरा बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, अच्छा दिखना है मेरा मेरे घर में, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा है कि मैं एक फ्रेम लगाऊंगा दीवार के ऊपर। तो मुझे कौन कौन से टूल लगेंगे यहाँ पे? तो आपको एक लगेगा स्क्रू मे बी, या फिर हैमर लगेगा रोकने के लिए, राइट। सिमिलरली, in order to solve business problems, we are using some AI tools like machine learning, SQL, Python, deep learning, R, Power BI, Tableau, जो भी है बाकी, Docker, Kubernetes, PySpark, ये तो हमारे टूल्स हैं। मैं एक्चुअली मेरा फाइनल एम क्या है, यहाँ पे फ्रेम लगानी है मुझे दीवार के ऊपर, फ्रेम लगानी है बस। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या, नहीं नहीं मेरे को हैमर ही चाहिए, और नहीं तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे हैमर ही चाहिए। नहीं, अगर आपको कहीं कहीं से स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको बेसिक मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम किसी एक टूल के ऊपर मतलब रिलाई कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो वही करूंगा, मुझे तो आर ही आती है, मैं तो आर, मैं पाइथन नहीं सीखूंगा, मेरे को आर के ऊपर ही काम करना है। नहीं, हमें वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो टूल्स लगेंगे वो आप सीखो और वो आप इम्प्लीमेंट करो। मैं वही करने जा रहा हूँ, जो आपको पढ़ाऊंगा मैं एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा बेसिकली, सारे एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर वाले नहीं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स वाले नहीं, ये हमारे स्कोप के बाहर है। हाँ? हमारे स्कोप में अभी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका कैसा यूज करना है, क्या नहीं करना, जो भी है वो आपके ऊपर, को एनोमली डिटेक्ट करने के लिए बोलिए, और आप IQR रेंज यूज करना चाहते हो, या फिर एल्गोरिथम को यूज करना चाहते हो, या फिर डीप लर्निंग टेक्निक्स, वो कोई भी है आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो सारे टूल्स कैसे, मतलब हथौड़ा कैसा काम करता है बताऊंगा, कैसे ठोकना है, या फिर जो भी कुछ कितना एनर्जी लगता है उसको, वो सब मैं बताऊंगा। बट आपको क्या चीज करने के लिए कौन सा टूल लगेगा वो फिर आपको देख लेना है एक बार प्लम्बर होने के बाद। तो वैसा ही है, डेटा साइंटिस्ट होने के बाद उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टूल्स कैसे लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना हमारा काम है। बाकी जो है मतलब आपको मैं इनेबल करने वाला हूँ रिसर्च कैसे करें, तो आप वो खुद सीख जाएंगे। अभी कुछ कह रहे थे आप, पूछिए। हाँ राजेश जी, हम इस पे मतलब हिस्टोरिकल बिग डेटा पे काम करते हैं, डेटा बहुत ज्यादा होता तभी PySpark यूज हो रहा है। हाँ, जनरली हम डेटा के ऊपर ही काम करते हैं, कभी कभी हाँ, मोस्टली मतलब कि 99% केस में हम डेटा साइंस वाले बंदे डेटा के ऊपर ही काम करते हैं। अगर आप MLOps क्या ऐसे तो ही हम मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि लेट्स सपोज हमने जब प्रोजेक्ट लिया, उन्होंने हमें बोला कि 2023 का जुलाई तक का डेटा हमने डंप कर लिया, डेटाबेस में आ गया, हमने अपने मॉडल प्रिडिक्ट किया, मॉडल बनाया, जनरेट किया, एग्जीक्यूट कर दिया, उन्हें रिजल्ट मिल गया। क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो लेट्स सपोज अगले और 2-3 महीने हम वेट किया, उसका डेटा आना था, अभी वो डेटाबेस में डंप नहीं किया, क्या वो हमारा काम होगा डेटा को यहाँ पे लाना कॉन्टिन्यूसली? नहीं,
ये हमारा काम एक्चुअली यहाँ पे देखो अभी, और वो ये चीज क्लियर करता हूँ मैं आपकी भी। देखो, डेटा इंजेक्शन वगैरह जो काम है वो डेटा इंजीनियर करेंगे टेक्निकली, और डेटा आएगा तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अभी डेटा इंजीनियर्स। तो ये आपकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, डेटा डेटा का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ चेक करके स्कीमा वगैरह डिफाइन करके और डीबी में डाल देंगे। यहाँ आने के बाद कभी कभी यहाँ पे डेटा क्वालिटी इंजीनियर्स भी रोल प्ले करते हैं। डेटा क्वालिटी इंजीनियर्स वो डेटा की क्वालिटी सिर्फ चेक करते हैं, कहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, प्रॉफिट कॉलम है और -5000 लिखा हुआ है, प्रॉफिट तो माइनस नहीं होता, फिर उसको प्लस करेंगे, जो भी करना है वो लोग करेंगे। हमारा उसमें भी ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पे हमारी कंपनी में तो डेटा क्वालिटी इंजीनियर्स पे, बट मैं जब अभी तक काम करता था उसमें नहीं थे, इवन इस प्रोजेक्ट में नहीं है। तो होंगे नहीं होंगे ये काम फिर आपको ही करना पड़ेगा डेटा क्वालिटी वाला। बट डेटा जो इंजेक्शन हो रहा है और आ रहा है वो आपको आपका मैनेजर बताएगा कि डेटा नहीं है तो नहीं हुए, अगर विदाउट डेटा ही आपको फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, जो भी है कम डेटा के ऊपर ही। ज्यादा डेटा नहीं है तो कम डेटा के ऊपर जब भी आएगा तब वो आपको मैनेजर आपको बता देगा कि यहाँ इस दिन वो डेटा आने वाला है। जैसे कि हम मेरे पिछले कंपनी में कुछ डेटा एल से लेते हैं, एल से रेस्टोरेंट का डेटा कभी कभी हम परचेस करते थे। तो अगर वो आया है तो ठीक है, नहीं आया येल्प मेरा मॉडल ट्रेन करूंगा, विदाउट येल्प डेटा मेरा मॉडल ट्रेन होने के बाद येल्प डेटा आ गया तो उसके ऊपर मैं टेस्ट करूंगा मेरा मॉडल और फिर एक्यूरेसी देखूंगा। ये टेस्टिंग के लिए काम आएगा, नहीं तो फिर रीट्रेन करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि मैंने अभी एक मॉडल रीट्रेन कर किया है, तो अभी ये ट्रेन करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं साल भर 2 साल 4 साल वही मॉडल यूज कर रहा हूँ, नहीं, हमें बार बार उसको रीट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा होता है कि डेटा ड्रिफ्ट होता है। डेटा ड्रिफ्ट यानी मान के चलिए कि चलिए एक लोन है, लोन का एक एप्लीकेशन है, आपको ये बता रहा है कि लोन आपका सैंक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर लोन कितना मिलेगा, या फिर ठीक है सिंपल केस बोलते हैं लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा। तो लोन सैंक्शन के मान के चलिए कि 2019 का डेटा है और 2019 का एक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। बट बाद में क्या हुआ, आपकी सैलरी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, बट या अभी वही सेम मॉडल आपको बता रहा है कि आपका लोन सैंक्शन होगा, बट ये डेटा ड्रिफ्ट हो गया है, डेटा चेंज हो गया है। अब आप पुराने समय का डेटा लेके अभी आप बोल नहीं सकते कि आपको सैंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको नया डेटा देख के हो सकता है कि सैलरी बढ़ गई है लोगों की, तो ओवरऑल ये थोड़ा सा ये मॉडल सीख लेगा कि सैंक्शन उसको मतलब हिस्टोरिकल डेटा से, या फिर एक दो और कॉलम्स आ गए, जैसे कि यूएस ने एक बार बीच में एक स्कीम निकाली थी। तो अगर उस टाइप स्कीम निकाली और स्कीम का आप ये लाभ उठा रहे हैं उस स्कीम का, तो यहाँ पे आता है कि यस और नो, यस नो टाइप, ये भी एक कॉलम ऐड हो गया। बट हमें तो हमारे मॉडल को तो पूरा नहीं पता नहीं था। अगर ये रिकॉर्ड में आ गया एक्स्ट्रा कॉलम तो बोलेगा कि इनपुट रिक्वायर शेप से 1 2 3 था पहले, इनपुट ऑफ शेप 3,0 3 कॉमा सिर्फ आता है, तो 3 कॉमा बट प्रोवाइडेड 4 कॉमा, बट 4 फीचर्स आपने दे दिए उसको, 1 2 3 4, क्योंकि नया डेटा आ रहा है तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 कॉलम पता है, चौथा कॉलम आपने बाद में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये रिकॉर्ड सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको रिट्रेन करना पड़ेगा मॉडल को। तो डेटा ड्रिफ्ट में ट्रेनिंग सर्विस क्यू मिलने के बाद वो हम फिर से उसको रिट्रेन करते हैं 4 से महीने, मतलब ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर और सब आपका कितना कॉम्प्लेक्स और बिजनेस प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर। बट हाँ, डेटा मिलने के बाद ही हमारा काम शुरू होता है, उससे पहले हमारा मैनेजर बता देता है कि हाँ डेटा इतना है और इतने में आप, और टेबल्स इस डेटाबेस में है, आपको ये टेबल एनालाइज करो। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि वो यही टेबल इस्तेमाल करना है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलते वो लोग सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई तुझे क्या करना है कि बाबा डेटा होम प्राइस प्रेडिक्ट करने हैं, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने हैं,
तो हम क्या फिर करते हैं, डेटा देखना शुरू करते हैं, डेटा एनालाइज करना शुरू करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं हम जिसको, जहाँ पे हम अलग अलग टेबल्स एनालाइज करके देख लेते हैं कि कौन से प्रेडिक्टर्स काम आएंगे, जैसे कि नंबर ऑफ रूम्स काम आता है, कारपेट काम आता है, और इसको स्टैटिस्टिकली भी हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये सच में काम आ रहे हैं या नहीं, ये सच में स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स है या नहीं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे प्राइस प्रेडिक्ट करने में या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो ड्रॉप करो, कर रहे तो ले लो। अगर ये कॉलम्स 5-6 टेबल में अलग अलग है तो सिक्वल ज्वाइन यूज करके उसको कंबाइन करो, उसका एक फाइनल टेबल बनाओ, उसको आईडी में लेके आओ आपको जुपिटर लैब में, और फिर आप इसको एनालाइज, और जो भी है वो, बट वो सिर्फ बोलता है कि प्राइस को भाई प्रेडिक्ट करना है, बस इतना ही बोलता है मैनेजर, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है। हमें कुछ टेबल नहीं मिलता है, कुछ डेटा नहीं मिलता है, ये डेटाबेस से बोलता है वो सर्च कर लो तुमको, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। अब मैं जो पहले भी रिपोर्ट करता था वो वीपी को मान के चलिए कि रिपोर्ट करता था, तो उनको तो बिजनेस का ही पता होता है, सिर्फ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उतना ही बता पाते हैं। एक्चुअली ये बिजनेस वाले लोग तो कभी कभी मैंने एक बार क्या किया, सेल्स टीम को पूछा कि सेल्स की वो डायरेक्टर थी वो मेरे पिछली कंपनी में, उसको पूछा कि डेटा कहाँ से लेके आते हो, तो बोली कि टैबलो से डेटा आता है। ठीक है, तो उनको नहीं पता होता है कुछ भी, बिजनेस लोगों को कुछ नहीं पता, हमें ही वो सब कुछ निकाल के एनालाइज करके, कुछ डेटा इंजीनियर्स है, कुछ कोई है तो उनको पूछ के वो करना पड़ता है काम। तो मेरा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन, मेरी कोई एप्लीकेशन है जो कि एंगुलर में बनी हुई है, SQL सर्वर में, राइट? अब उसमें कुछ जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे देखना है कि मेरे एप्लीकेशन में कितने यूजर रजिस्टर्ड होंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है? मेरे पास लास्ट 2 साल का डाटा पड़ा हुआ है। हेलो, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि मेरी एप्लीकेशन में नेक्स्ट ईयर कितने यूजर रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है? मेरे पास लास्ट 2 इयर्स का डाटा पड़ा हुआ है, तो मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है एंगुलर में और SQL सर्वर में। अब अगर जैसे कोई डाटा साइंस वाला कोई टेक्निकल पर्सन है, वो कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेगा मेरी वेबसाइट पे अगर डाटा दिखाने के लिए? कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा, और आपका एप्लीकेशन तो एंगुलर SQL सर्वर में है, ठीक है? SQL सर्वर में आपका डेटा है? और हाँ, डाटा इसमें है, फ्रंट एंड मेरा एंगुलर है। फ्रंट एंड में कुछ आपने उससे फेच करके कुछ फीचर बनाया है। हाँ, रेस्ट मेरे को चेक बनाना है मुझे कि नेक्स्ट ईयर मेरे पास 500 यूजर रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है? मेरे पास लास्ट 2 इयर्स का डाटा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप लोग कैसे क्या क्या करते हो फिर आप? अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए ये होगा कि हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में मान के चलिए अभी के लिए कि आपको कुछ शो होता है, एक ग्राफ्स वगैरह मिलते हैं जो कि बताते हैं कि कितना एनरोलमेंट रेशियो है, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यही डेटा हम फेच करेंगे, हमारे आईडी में लेके आएंगे, इसके ऊपर एक मॉडल ट्रेन करेंगे, जो कि मॉडल बताएगा फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो ये सारा काम आपके टूल में होगा, ये सब कहाँ पे करोगे आप ये सब चीजें? हाँ, ये तो बताता जाऊंगा मैं, ये आईडी में हम करेंगे, ठीक है? ये तो एक आईडी ले लेंगे हम, जुपिटर लैब है, कोई भी है, वर्टेक्स CI का वर्क बेंच है, तो वहां पे लेके हम एक मॉडल डेवलप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मॉडल, हम कहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ से कहाँ पे भी हम कर सकते हैं आईडी में। तो मॉडल एक बन जो रहा है, फाइनल मॉडल, अब इस मॉडल को हम डिप्लॉय करेंगे कहाँ, कहीं पे एंड पॉइंट पे। अगर ये डिप्लॉय हो गया तो वो देगा हमें प्रेडिक्शंस, हम इसी में से रिकॉर्ड पास करेंगे और प्रेडिक्शन मिलेगा। अब प्रेडिक्शन में भी वो रिकॉर्ड्स ही होंगे, राइट? ये कॉलम्स भी होंगे ना, प्रेडिक्शन क्या है मतलब, एक फिर से एक कॉलम्स है, नए कॉलम्स, अब एक नया कॉलम ऐड हो गया हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शंस, और ये एनरोलमेंट जो भी है एनरोलमेंट वाला कॉलम,
एक ऐड होगा, वो बोल रहा है कि अगले साल जो भी है नंबर 1 नंबर एनरोल करेगा। फिर आप क्या करोगे, यही डेटा इस टेबल को आप इसमें इंसर्ट करोगे एक नए टेबल के नाम पे, न्यू टेबल। न्यू टेबल जब आएगा तो इसके ऊपर अब ये कट होगा यहाँ पे, और इसके बेसिस पे आपको ये नया जो भी है आपका रिपोर्ट वो जनरेट होगा और वो दिखाई देगा। समझ गए? हाँ, ये क्लियर हो गया। क्लियर, ओके, गुड। तो हाँ ठीक है, अब आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस होगा आपका पाइथन, मशीन लर्निंग में बहुत सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ये दो प्रकार है। अब मैं उसको बाद में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा जब मैं ये शुरुआत करूंगा। डीप लर्निंग है और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग है, एक्चुअली ये रोल ही अलग है। अब मैं ये पढ़ाऊंगा तो कम से कम मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे। तो मैं आपकी बैच में क्या करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो हमें, देखो आपको पता है किसको देना है, हमने वो डिस्कस किया, तो उस हिसाब से इसको अब ज्यादा वैल्यू है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग को। बट ये सीखने के बाद ही यहाँ तक आ सकते हैं, ये विदाउट यहाँ पे डायरेक्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज्यादा नहीं बट। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये आप यहाँ पे ज्यादा एफर्ट्स लगा के हम ये जल्दी से जल्दी खत्म करके यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। और ये अगर हो गया, ये अचीव, अब इसमें क्या पढ़ना है, तो मैं प्रॉपर आपको लेवल 3 डिप्लॉयमेंट पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि एंड टू एंड होगा वर्टेक्स एआई के ऊपर या फिर सेजमेकर के ऊपर, हम वो डिसाइड करेंगे। उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, सिर्फ टूल्स के नाम चेंज है। अच्छा, और इसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट कहाँ किस स्टेप पे रहेगा? अच्छा, मैथमेटिक्स में पाइथन के बाद स्टैट लिखना भूल गया, स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स एज सच नहीं रहेगा, मैं लीनियर अलजेब्रा इसी में कवर करूंगा। ठीक है। तो 12-13 लेक्चर्स होंगे उस पे भी, या 15 दिन बोल सकते हैं आप, 15 लेक्चर्स, तो कितने दिन में खत्म होंगे वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। एमएलई में तो ये है, डॉकर है वगैरह है, कंटेनराइजेशन आपका, एयरफ्लो, फ्लास्क, जो भी है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, गिटहब आ जाएगा। तो ये सब कुछ मुझे आपको इस बैच में एक्चुअली पढ़ाना है, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है मेरे साइड से, बट आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा सिर्फ, अगर वो एक्सटेंड हुआ तो। अगर आप जल्दी जल्दी कैच करोगे तो जल्दी जल्दी हम प्रोसीड करेंगे। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप भी आपके ऊपर क्यों है, क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सनलाइज्ड डे कोचिंग है हमारी, ऐसे हार्ड एंड फास्ट, मतलब यहाँ पे सारे रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा ही नहीं। जब तक आज आप नहीं समझते तब तक मैं पढ़ाता जाऊंगा वो चीज, क्योंकि आप समझो कि मैं हर किसी को सेपरेट पढ़ा रहा हूँ, यही समझ के आपको मुझे मतलब फ्रैंकली बोलना है, या फिर जो भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता तो आपको बोल दूंगा कि मैं ये देख लूंगा, मुझे मतलब ये इस चीज का जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इवॉल्विंग फील्ड है। बट हाँ, इतना भी पढ़े तो आपको तो पता है कि हाँ आप मतलब एक्सेल कर पाओगे इस फील्ड में। आपको ये भी लगेगा अरे इसने किया तो मैं भी कर दूँ, बड़ी बात है। तो ये इस कोर्स के लिए हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाएंगे? हाँ, तो कंसिस्टेंसी ये है कि मैं एक जैसे मेरे पहले क्लास में हंटर लेके बैठे थे वो लोग, जैसे मैं आपके अटेंडेंस लूंगा, ये स्कूल है, आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, तो हर किसी का अटेंडेंस ली जाएगी। अगर क्लास में नहीं आए तो मैं तो आप एक्चुअली मराठी नहीं समझ सकते, नहीं तो मेरे पुराने वीडियोस है, मैं डायरेक्ट स्कोल्ड करता हूँ। तो उसका भी कोर्स स्टार्ट कर देंगे ना फिर एक दिन मराठी का। तो मतलब मैं तो सोच रहा था कि यार मैं ये वीडियोस
कंटेंट ये मेरा पब्लिश करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं तो बहुत चिल्लाता हूँ बच्चों के ऊपर। एक्चुअली वो छोटे मतलब काफी कोई प्रेशर है, कोई 4 साल का एक्सपीरियंस वाला है, 5 साल का है, तो कम थे, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है मुझे। बट हाँ मतलब वो एक था मेरे पास हंटर कि नहीं, मैं पूछता था या फिर मैं कॉल भी करता था कि भाई तू क्यों नहीं आया, तो सबके सामने अच्छा, पूछता लेकिन हूँ कि क्या हुआ? आप भी वर्किंग है तो, लेकिन आपकी साइड से आप फिर रेगुलर रहेंगे कि उस बीच बीच में कुछ वर्क प्रेशर रहेगा तो कैसे रहेगा? मतलब कुछ हम चेंज भी होगा हमारा टाइमिंग, कि हमारा फिक्स हो गया तो वही चलता रहेगा? हाँ मतलब आपको क्या करना है, सैटरडे संडे एक्चुअली समय बहुत ज्यादा निकालना है यहाँ पे, सैटरडे प्लस संडे जो भी ठीक है। आपकी असाइनमेंट कोडिंग वगैरह यहाँ पे। और डेली क्या करना है, 9:30 से खुद को एक मीटिंग इनवाइट सेंड करो, 9:30 से 11:30 की। तो यहाँ पे कुछ इधर उधर हिलना ही नहीं है आपको, कुछ भी हो जाए मैं 9:30 बजे रात को वाला हूँ। थोड़ा सा डे में नहीं हो सकता क्या? हाँ राजेश, नहीं मतलब मैं आप ये बोल रहा हूँ, अब अभी टाइमिंग के ऊपर नहीं आया हम। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आप बोल रही थी कि हम कंसिस्टेंसी कैसे ले आए। राइट, हाँ, राइट। तो ये रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं, पहले तो मैं ये रिजॉल्व करके आपके आंसर के ऊपर आता हूँ और आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। तो सैटरडे संडे फुल देना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए थे, 2 घंटे में वो काम हो रहा है तो बाकी क्या किया दिन भर, तो मैं इतना डिटेलिंग में जाता हूँ। तो एक मेरी तरफ से आपके ऊपर थोड़ा सा वॉच रहेगा। और कोई आप मेरी तरफ से एक्सरसाइज मैं दोगे? फोन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं तो हूँ बीच करने के लिए, ठीक है, बाकी असाइनमेंट्स वगैरह है। और सबसे मतलब बढ़िया चीज ये है कि आपको कोई मोटिवेट क्या करेगा इस एज में, तो सिर्फ पैसा मोटिवेट करेगा। मैं क्यों इतना लेक्चर देता हूँ, मैं क्यों इतना मतलब भागदौड़ कर रहा हूँ, सैलरी Exactly. राइट, ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा। वो तो जैसे 40 साल की एज में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो कौन करेगा? तो पैसा तो इतना आएगा कि भाई साहब मतलब ठीक है। तो जितना कमाओगे उतना कम है। मान के चलिए कि आप एनएलपी में बहुत एक्सपर्ट हो गए, मैं फ्रीलांसिंग में कितना स्कोप है इसका? बात नहीं फ्रीलांसिंग में करता। हाँ फ्रीलांसिंग में स्कोप कितना है इसका? है, बहुत ज्यादा। एनएलपी और कंप्यूटर विजन में सबसे ज्यादा है आज की घड़ी में। एक्चुअली डेटा साइंस में 4, उसमें से एक है एनएलपी, दूसरा है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन मतलब कि आपके ऑडियो सॉरी आपका वीडियो डेटा और इमेज डेटा। फिर एनएलपी में आपका टेक्स्ट डेटा आता है, और जो नॉर्मल टेबुलर डेटा है वो तो है ही। फिर आता है आपका रिकमेंडर सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया। और आखिर में आता है टाइम सीरीज, वो भी आपको मैंने बताया है इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस। ये 4 स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। तो मैं क्या कवर करता हूँ, मैं एनएलपी कवर करता हूँ और कंप्यूटर विजन कवर करता हूँ। मैं रिकमेंडर सिस्टम ज्यादा कवर नहीं करता, क्योंकि अभी हर वक्त हर कोई चीज कवर करने लगेंगे तो हो सकता है कि हमारा आप जैसे बोले थे कि 2-3 साल लगेंगे, तो इसको लगते हैं। ये पूरा सीखने के लिए तो 2-3 साल भी कम है, क्योंकि ये ओशन है डेटा साइंस का। हर कोई चीज हर कोई नहीं सीख सकता इन वेरी डिटेल, राइट। तो हम जितना आपको जरूरी है, जितना आप ये ध्यान में रखते हुए सब कुछ सीख जाएंगे। हाँ, मैंने यही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो यही एक ऐसा मतलब चीज है सर, बाकी चीज को के मोटिवेशन को सप्रेस करके ये सोचो कि टॉप पे आ जाएगा। राइट। और तो अपॉर्चुनिटीज तो मतलब इतनी है कि नॉर्मल कंपनी में भी एनएलपी का आप बता के जाओगे, तो 2-4 काउंटर ऑफर ले लोगे तो 50 लाख का आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा उसी पे आते हैं अपने। फिर हाँ, टाइमिंग सैटरडे संडे रहेगा हमारा, और असाइनमेंट्स रहेंगे आपकी तरफ से। हाँ, एक सेकंड, मैं अभी मेरा सॉरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देख लो 50 लाख